हम सबको याद रखना होगा कि हमारा मनोरंजन हमारे राष्ट्र और हमारे धर्म से ऊपर नहीं है। राष्ट्र सर्वोपरि, धर्म सर्वोपरि। You have to absolutely separate them from India. And all these people in Bollywood, I'm telling you, all these singers who operate outside, any Bollywood singer, I had mentioned this before, in the film Kesari, there was a song called Aaj Singh Garjega, right? This was sung by a singer who is a Khalistani, right? Jazzy B is a Khalistani, he's a known Khalistani. I want to ask Bollywood, why do you give a platform to Khalistanis? Why do you give a platform to Khalistanis or even Pakistanis? Why do you give a platform to them? If people in Mumbai say that don't record something in Mumbai, you say, okay, we'll go and record it in Dubai. I'm just requesting Bollywood, please do not try the people's patience. Please don't try this nonsense. There will be a massive pushback from the population if you keep on doing these anti-India activities. Please desist. It's my request to you. Please desist. With folded hands, I'm requesting you, do not do this. It's a request. There'll be a massive fallout. And you don't understand the undercurrents because wherever you live in South Bombay, you're removed from reality, which is why you make those funny movies that you do. Mostly funny, not all of them. Some of them are fantastic, but mostly funny movies that tank, that fail because obviously you've got no idea of what the common Indian is thinking. But let me tell you this, the common Indian is patriotic. The common man is extremely patriotic and he does not like anything which is against India. So if you give, I'm going to personally stand against you. I'm one person. But if I find out that you have given business to one Khalistani, or you have been on a platform abroad in a musical concert with a Khalistani, or if you have had any business dealing or any social dealing with any Khalistani, I am coming after you. If you have any business dealing with any Pakistani, I am coming after you. And I'm telling you this today as a common Indian, I am one person. I am just one single person, but I'm coming after you if you do it. I've had enough of your nonsense, enough of your greed, and enough of your, that let's collaborate and Aman ki, I've had enough of your Aman ki Asha nonsense. This stops today. This stops right now. Otherwise, in my individual capacity as an Indian citizen, I'm coming after you. Don't do it. I'll collect people. We'll raise awareness. And let me tell you, you will have nowhere to hide Bollywood. So please desist. नमस्कार मित्रों, ये क्लिप मैंने एक्चुअली इसलिए दिखाई क्योंकि इसमें जो मेजर आर्या कह रहे हैं बिल्कुल वही बात, वही इग्नोरेंस फिल्म मेकर्स में ही नहीं बल्कि फिल्म देखने वालों में भी है। कम से कम मेट्रोस में और बॉम्बे में तो बिल्कुल है। लोगों को कोई समझ नहीं कि वो किसे सुन रहे हैं, किसे देख रहे हैं। ऊपर से ये जो बॉलीवुड ने प्रोपेगेंडा चलाया ना कुछ वर्षों से, कलाकार का तो कोई धर्म नहीं होता, कलाकार का कोई रिलीजन नहीं होता, कला को रिलीजन के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। अरे कलाकार अगर तुमसे फंड्स लेता है, तुमसे पैसे कमाता है और उसको तुम्हारे देश, तुम्हारे धर्म के विरुद्ध उसका इस्तेमाल करता है, तो वह कलाकार, क्या आपको इस सिचुएशन में कलाकार की आइडियोलॉजी, कलाकार के विचार, कलाकार आपसे पैसे लेकर कहाँ प्रयोग करने वाला है, ये सब की जानकारी भी लेना नहीं चाहिए उसे पैसे देने के पहले? अच्छा मित्रों, ये केवल जैज़बी ही नहीं बल्कि और भी हैं, जैसे दिलजीत दोसांझ है, हरभजन सिंह है, या सिद्धू मूसेवाला था, वो तो खुलेआम खालिस्तानी था। उसको भी लोग सुन रहे थे, बड़े चाव से सुन रहे थे उसको भी, आज भी सुनते हैं उसके गाने। और केवल यही नहीं, बॉलीवुड और ये जो फिल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्री मतलब जो आजकल चलता है, इसमें देखें तो आधे तो या तो खालिस्तानी हैं और कहीं ना कहीं वो भी ISI फंडेड ही होते हैं। तो ISI और खालिस्तानी ये दोनों तो साथ में ही चल रहे हैं।
और बाकी का जो बॉलीवुड है वो भी 99% अंडरवर्ल्ड है, वो भी अंडरवर्ल्ड फंडेड ही। आप किसकी बात कर रहे हो फिर? अगर आप लेट्स आप जैजी बी या इन खालिस्तानियों को अवॉइड कर रहे हो, ठीक है, इनका बॉयकॉट कर दिया, पर क्या आप सलमान खान, शाहरुख खान, इन लोगों को देखोगे? इनको भी बॉयकॉट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये तो एक तरह से दाऊद के पैसे का मनी लॉन्ड्रिंग ही करते हैं, उसको वाइट वॉश ही करते हैं, सबको पता है। फिर क्यों लोग अपने मनोरंजन के क्या कहते हैं, मनोरंजन के लिए इतने बेबस हो जाते हैं कि इनकी फिल्में देखते हैं, इनके गाने सुनते हैं? और ये कौन सी कला है जो कि तुमसे पैसे दिलवाए, तुमसे उसकी तारीफ करे जो तुम्हारे देश के खिलाफ है? बहुत बार बहुत लोगों से मेरी इस बात पे भी आर्ग्यूमेंट हो जाती है और इवेंचुअली झगड़ा हो जाता है कि यू नो पीपल लाइक राहत फ़तेह अली खान कितना बढ़िया गाता है, वो कितना भी बढ़िया गाता हो, मीराबाई के भजन गाता है, ठीक है, तो क्या करूं? मीराबाई के भजन उसने भक्ति भाव से नहीं गाया है, उसने पैसा कमाने के लिए गाया है। तो मीराबाई का भजन अगर वो गाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको सर पे बिठा लेंगे या आप दिन भर उसके गाने गाते रहो। क्यों नहीं आप उठ के उसको बॉयकॉट करो? अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि लोग इस बात को समझते ही नहीं है। लोग इतने शैलो लेवल पर जाके सोचने लगे हैं आजकल कि मुझे तो एंटरटेनमेंट मिल रहा है ना, वो देश वेश गया भाड़ में, वो बड़ी बातें हैं, वो जिनको देखना है देखें, वो पॉलिटिक्स की बातें हैं, हमको क्या, हमको तो गाना अच्छा लग रहा है, हम गाना गाएंगे। और कुछ लोग उसमें से आके आपको ज्ञान देंगे उल्टा, ठीक है, अगर आप उनसे बात करने जाओ, उनको समझाने की कोशिश करो ना, तो आपको उल्टा ज्ञान देंगे कि तुम्हें तो म्यूजिक की समझ नहीं है, हमें संगीत में इंटरेस्ट है, हमें कला में इंटरेस्ट है, तुमको समझ नहीं है। तो भैया आप अपनी समझ रखिए, अपने जगह पे रखिए आपकी समझ। जिस चीज़ की आपको समझ है ना, वो चीज़ की समझ तो आप रखिए, लेकिन साथ में ये समझ भी रखिए कि आपकी किसी भी प्रकार की कला, स्पेशली कला मतलब ये इन लोगों को बोल रही हूँ मैं, क्योंकि आप लोग, ज़्यादातर लोग जो इस तरह की लेफ्टिस्ट विचारधारा की बातें करते हैं, ऐसे आर्ग्यूमेंट देके अपना साइड जस्टिफाई करने का ट्राई करते हैं ना, वो कला का मतलब उनके लिए, मतलब बॉलीवुड में बनी हुई पिक्चर उनके लिए कला का प्रदर्शन हो जाती है। इतनी फिल्दी लैंग्वेज होती है आजकल, स्पेशली जो बनती हैं पिक्चरें, उस फिल्म की आप कहानी देखिए, कोई कहानी नहीं, कुछ भी उल्टा पुल्टा दिखाते हैं। आधी से ज़्यादा फिल्में ही युवाओं को भटकाती हैं। उसके डायलॉग्स देखिए, इतने चीप होते हैं, गाने और भी वल्गर होते हैं, और उनका जो मैसेज होता है, मोस्ट ऑफ फिल्मों का मैसेजिंग इतना घटिया होता है, वो आपके समाज को भ्रष्ट करने वाला होता है। इसमें कौन सी कला दिखती है आपको? नहीं, सिनेमाटोग्राफी देखिए, ऐसे मतलब मिसाइल वाले वर्ड लेके आएंगे ये लोग, और इनको लगेगा कि बस ऐसे 10 ऐसे शब्द मार लिए मैंने और जीत लिया आर्ग्यूमेंट। आप जीतो हारो, पर आप एक समाज की तरह हार रहे हो। हमारा समाज, हमारा देश हार रहा है ऐसे लोगों की वजह से। अभी कुछ ही दिन पहले एक्चुअली मेरी एक जन से बात हो रही थी, और आदि पुरुष के बाद आपने सुना होगा एक दूसरी फिल्म आ रही है, सत्य प्रेम की कथा। अब सत्य प्रेम की कथा जो है, इसका नाम पहले सत्यनारायण था। मैं क्योंकि फिल्मों से दूर ही रहती हूँ, मैंने इसका टीजर ट्रेलर कुछ नहीं देखा, पर मैंने ऐसा पढ़ा इसके बारे में कि इसमें जो पात्रों के नाम हैं वे सारे पुराणों से ही लिए गए हैं। किसी का नाम सत्य है, किसी का नाम नारायण है, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली देवी देवताओं के नाम रखे गए हैं और बनाया गया है कोई चीप सा लव स्टोरी। तो आप सोच सकते हैं कि बॉलीवुड वाले क्या दिखाना चाह रहे होंगे इसमें, कैसी फिल्म बनाएंगे वे। इसी बात को लेकर मैं थोड़ा दुखी थी और थोड़ा गुस्सा भी थी, और मैंने कहा कि हम सबको इसको पूरी तरह बॉयकॉट करना चाहिए। और कुछ बेवकूफ़ लोग तो अभी देखना इसके गाने भी गाते हुए नजर आ जाएंगे। तो सामने से जवाब आता है कि हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है, अगर कुछ ऐसा गलत रहा तब देखेंगे, पर गाने में क्या है, अगर गलत भी है, पिक्चर बॉयकॉट हुई तो क्या हुआ, गाने अगर अच्छे हुए तो गाएंगे, लोग सुनेंगे ही, और हमें भी अच्छा लगा हम भी गाएंगे। आप गाने गाइए, आप फिल्में देखिए, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन
उन लोगों की नहीं या उनसे जुड़ी हुई नहीं जो हमारे धर्म की, हमारे राष्ट्र की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, जो एक स्ट्रैटेजिक तरीके से हिंदू धर्म को अपमानित करने का प्रयास करते रहते हैं। इतना कि आज पंडित को ना लोग पंडित कह के बोलते हैं, मतलब 20 साल के बच्चे भी पंडित जी को पंडित बुलाते हैं। और मैं वो कास्ट वाले पंडित की बात नहीं कर रही हूँ। पंडित जी जो आपके घर आकर पूजा पाठ अगर करा रहे हैं, हवन करा रहे हैं, तो बच्चों में इतनी तमीज़ नहीं रह गई है कि उन्हें पंडित जी कहें, उन्हें आदर पूर्वक बुलाएं। ये इन्हीं फिल्मों का क्या धरा है। फिल्मों में दिखाते हैं ना, पंडित चोर है, पंडित ऐसा, पंडित वैसा, पंडित हमेशा छल कपट करता है। तो पंडित को गिराने का जो ब्राह्मण, जो पंडित अर्थात विशारद, जिसे ज्ञान हो, ऐसा व्यक्ति, उसकी छवि को कैसे धूमिल कर दिया इन्होंने। और ये केवल उस व्यक्ति का जो अपमान करता है, या उसके कुल का, जहाँ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो अपने से ज्ञानियों का, अपने से बड़ों का आदर करना नहीं जानते हैं। बड़ों का अर्थ, अगेन बड़ों का मतलब होता है ज्ञानी, अपने से ज्ञान स्तर में जो अपने से बड़ा हो। वो केवल उस कुल का ही नहीं, इनफैक्ट सारे समाज का पतन है। इसीलिए अब थोड़ा सा हम सबको माइंडफुल होना चाहिए और हमें चूज करना चाहिए बहुत ही केयरफुली। हमारा मनोरंजन साइड में बैठ सकता है, हमारा कला में जितनी भी रुचि हो अपने घर पे रखो। अगर बात किसी ऐसे इंसान की, अगर वो कला किसी ऐसे व्यक्ति से आ रही है जहाँ पे देशद्रोह, धर्मद्रोह या संस्कार का जरा भी पतन हो रहा हो, तो उसे उखाड़ फेंको। नहीं चाहिए हमें ऐसा व्यक्ति, नहीं चाहिए हमें ऐसे व्यक्ति की कला, नहीं चाहिए हमें ऐसे व्यक्ति से या ऐसी इंडस्ट्री से मनोरंजन। और ये बात केवल बॉलीवुड या फिल्मों और म्यूजिक तक सीमित नहीं है। इवन क्रिकेट भी अवॉइड करो। आप हरभजन सिंह के फैन क्यों बन रहे हो? हाँ, वो अच्छा खेलता है, पर कोई भी व्यक्ति अच्छा खेलने से, अच्छी एक्टिंग करने से, अच्छा गाने बजाने से, अच्छा नाचने कूदने से कुछ भी अच्छा कर ले। वो अच्छा कलाकार हो सकता है, अच्छा क्रिकेटर हो सकता है, लेकिन यदि एक व्यक्ति अपने धर्म के साथ अच्छा नहीं है, अपने देश के साथ अच्छा नहीं है, तो उसकी बाकी सारी कलाएं भाड़ में जाएं। और यह करने के लिए हम सबको जागना पड़ेगा। इन छोटी छोटी बातों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अपने जीवन का छोटे से छोटा चुनाव करते हुए भी हम सबको याद रखना होगा कि हमारा मनोरंजन हमारे राष्ट्र और हमारे धर्म से ऊपर नहीं है। राष्ट्र सर्वोपरि, धर्म सर्वोपरि। जय श्री राम, वंदे मातरम।